A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the English language paper of 2023 examination that was held on 13th of Feb. The very first thing that we'll start in this is a part of functional grammar that is your favorite. You people like to attempt it at the very first. Even though ISC, the council says that you have to attempt the essay first, still so the very first in this is the part of transformation. That is also your most favorite part. First is Sushil's attitude towards work has always puzzled me. Now this is a part of active. So it has to be changed in the part of passive. Sushil's attitude towards work has always puzzled me. I have always been. Why? Because has, so it will change into has been. तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है I के साथ it will be have. I have always been puzzled by Sushil's attitude. Sushil's attitude towards work. Okay, now you can read it again. क्या कहा गया? Sushil's attitude towards work has always puzzled me. I have always been puzzled by Sushil's attitude towards work. Next question. As soon as I solved one problem, the teacher gave me another. No sooner did I solve one problem. Okay, no comma will be used. Than the teacher gave me another. Full stop. The next one, he was too gentle to have committed the crime. He was so gentle that he could not. Past tense है, नहीं तो can हो जाता. ठीक है, he was so gentle to have committed the crime. He was so gentle that he could not have committed the crime. I and my beautiful handwriting. Then next one, not only was he famous actor but also a renowned director. Besides being a famous actor, you can also use comma here. Besides being a famous actor, he was also will not be used. He was a renowned director. Okay, next question. Next part in this is, Robin said, it gives me great pleasure to be here this evening. Robin said that it gave will change into past tense. It gave me will change into him. It gave him great pleasure. Great pleasure to be here, so it will change into there, to be there that evening. Okay, now we will move to the part of prepositions. The first one is, the judge turned down the defendant's appeal for a postponement. अब turned down का क्या मतलब होता है? Turned down means reject. Okay, next is, he turned up for the program earlier than usual. ये वाला up turned up वाला हमने phrasal verbs के part में भी करवाया था. Means to appear out suddenly is turned up. There is an urgent need for a bus stop in this village. Then he has a poor sight and is in need of glasses. ये तो बहुत simple से हैं. फिर next is, the speeding driver was pulled over by the traffic police. Now over means to move aside. जैसे usually होता है कि पुलिस ऐसे करके कोने कर देती है, is to move aside. She is very ill, but the doctors think she will pull through. Now pull through means she will get better. ओके, चीजों के मीनिंग पता होंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी. देन शी सेट असाइड अ लिटिल मनी. ऑब्वियसली ये बहुत सिंपल सी चीज है कि उसने थोड़ा सा पैसा कोने किया या थोड़ा सा पैसा उसने सेव किया.
a little money each week for the child's education, I would not even know how to set about. About means to start something with determination. Okay, start doing something with determination. Next is one should not give up hope despite the hurdles. Then next is that mother gave in to the persistent demand. Now if it gave in means to cease fighting. Then next part of this is the last, the part of tenses or appropriate tenses to be used. The appropriate form of tenses to be used: the rain approached like a dark curtain. I saw it. It will be used as past tense. I saw it marching down the street, heavy and remorseless. It drummed, double med, on the tin roof and swept across the river over the balcony of my room. I sat there without moving. ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे सही सिस्टम ये है कि पहले एक बार इसको ओरली सॉल्व करो, लिख लो अपने पास, फिर दोबारा से देखो पढ़ करके कि कोई मिस्टेक ना हो इसमें. Letting the rain soak my sticky shirt and gritty hair outside the street rapidly emptied. या अगर आप इसको पैसिव टेंस में देखोगे तो इट द स्ट्रीट was rapidly emptied, the street rapidly was emptied. ठीक है, या सिंपली emptied भी सही है उसमें. Buses, cars and bullock carts plugged through the suddenly rushing water. A group of small boys came jumping along a side street which was like a river in spate. A garland of marigolds swept off the steps of a temple came floating. ing will be used, yes. Down the middle of the road the rain stopped. Okay, completely past tense. as suddenly as it had begun, the day was ending. दिन खत्म हो रहा था. And the breeze remained, ned, cool and moist. Next, after this, the part of comprehension. Comprehension was a little tricky as students told me. थोड़ा सा अजीब सा था, बहुत ज्यादा अजीब नहीं कहेंगे. द फर्स्ट वर्ड इज कि इसमें ये हमने पहली चीज आपको बताई थी कि ये आपको मीनिंग्स दी हुई है और आपको सिमिलर वर्ड यूज करना है इसमें. ओके, तो द फर्स्ट वर्ड इज इनएक्टिव. इनएक्टिव को यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज नोन एज, द वेरी फर्स्ट पार्ट इज सेडेंट्री. फिर सेकेंड चीज इसमें दी हुई है, इसी में से पढ़ लेते हैं. सेकेंड उसमें दिया हुआ ईटिंग इन ग्रीडी मैनर. तो ग्रीडी मैनर का मतलब बहुत ज्यादा वैसे करके खाना, ओवर ईटिंग काइंड ऑफ, तो दैट इज गॉर्जिंग. और लास्ट इसमें दिया हुआ है पेरिलिस. तो पेरिलिस इज अ पार्ट ऑफ डेंजरस, जो यहाँ पर मीनिंग में दिया हुआ है. ठीक है, तो दिस इनएक्टिव इज सेडेंट्री, कि पर्सन हु लिव मतलब हु लिव अ लेजी लाइफ, या फिर एक ही जगह पर बैठे रहना. ईटिंग इन अ ग्रीडी मैनर इज गॉर्जिंग. And last is dangerous means perilous. Then next is for each of the words you have to write a sentence of at least 10 words using the word that is unchanged in form. मतलब इसमें आपको इसका फॉर्म नहीं चेंज करना है, but with a different meaning. तो यहाँ पर it is used as verb, यहाँ पे it is used as verb, and it is used as some part of some position kind of thing, या preposition की जैसे इसको यूज किया गया है. ठीक है, तो here I will use it as a kind of that noun जो lights strike करती हैं. तो here it is that there was frequent thunder and lightning. There was frequent thunder and lightning, okay, last night. Then next is spring. So here the other word, matlab here it is used as verb, I will use it as noun. This flower, एक minute,
I can use it as the flower या फिर this flower blooms in early spring. Okay, early spring means here it has been said as a season kind of thing. और सबसे लास्ट वाला है past, तो she found it hard, क्योंकि हम लोग इसमें पर्सन के नाम का यूज, प्रॉपर नाउन्स का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर वी विल राइट इट शी फाउंड इट हार्ड टू अर्न मनी इन द पास्ट. ओके, फिर इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द यूजुअल नेचर ऑफ नरेटर्स काइंड, तो इट वॉज दैट ही वॉज बीइंग सेडेंट्री आप इसमें लिख सकते हो, या फिर उसको और एक्सप्लेन करके लिख सकते हो दैट द नरेटर्स यूजुअल काइंड वॉज बीइंग इनएक्टिव ड्यूरिंग द डेज. देन हाउ इट डिफरेंटली प्रेजेंटेड इन द पैसेज, कि वो वहां पर कैसे डिफरेंटली पैसेज में प्रेजेंट किया गया है. तो हियर यू कैन राइट दिस पार्ट ऑफ, जहां पर एकदम फर्स्ट पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन किया गया है कि इस चीज को हटा करके उसके बाद यहां से लेकर के कि हाउ ही हैज बिहेव्ड, दिस यू कैन राइट इट हियर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इज कि व्हाट डिड, अब उसके बाद पूछा गया है कि जो उसकी फेवरेट ट्रीट ऑफ क्रीमी पुडिंग है उसने क्या किया था नरेटर को, तो व्हाट इट डिड. नाउ हियर यू विल यूज द पैसेज 4 फॉर दिस, कि उसने उसमें क्या, उसको क्या किया था, उसका कैसे इसमें इफेक्ट हुआ था. तो दिस द प्राइमल एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी, या ये डायरेक्टली लिख सकते हो अपने शब्दों में दैट ही फेल्ट एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक, ही felt an overpowering compulsion, yeah, he found some provoking energy, that he was completely mad, और अपने शब्दों में लिखोगे he was completely insane, or in the fit of insanity he wanted to run like a jungle cat. Okay, then describe the actions of the narrator after being bursting into visitors room. तो इसके लिए आप 5th passage यूज कर सकते हो कि कैसे, what was he doing, describe the actions of the narrator after being bursting into visitors room. विजिटर के रूम में जाने के बाद जहां पर सब बैठे हुए थे वहां पे उसने क्या किया, तो what he did, he burst through the door into the room, और उसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी सी चीजें, he tore up the carpet and went towards the sofa where he was sitting. He ripped the fabric, yeah, or he tore the fabric and scrambled up its side. ठीक है, ऐसे अपने शब्दों में लिख सकते हो उसको. फिर लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द जर्नलिस्ट रिएक्ट व्हेन द नरेटर फ्लू पास्ट हर फेस. तो यहाँ पर एक सिंपल सा सेंटेंस था कि जैसे ही वो उसके फेस के बगल से गुजरा, पास्ट मीन्स यहाँ पर द मीनिंग इज टू फर्दर साइड, आइदर ऑफ द साइड में यहां से गुजरा या फिर यहां से गुजरा. हर एक्सप्रेशन टर्न्ड फ्रॉम काम एंगेजमेंट टू ऑफ टोटल सरप्राइज. यहां पर आप सिंपली उस चीज को लिख सकते हो कि उसका जो रिएक्शन है वो कैसे चेंज हुआ. शी वॉज एस्टोनिश्ड. ओके, शी वॉज एस्टोनिश्ड, या यहां से लिख सकते हो दैट शी एस्टोनिश्ड, या स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो दैट द जर्नलिस्ट, हाउ डिड द जर्नलिस्ट रिएक्ट व्हेन द नरेटर flew past her face. It will start from the question itself. When the narrator flew past her face, the journalist from being calm turned into an astonished state. उसके बाद how the narrator became a global celebrity. Now specifically आपको बोला गया है कि पैसेज 4 से लेकर के शुरू करना है उसको. जस्ट एज ही एट दिस his meal, what he started, he felt an energy, और उसके बाद अपने शब्दों में लेकर के छोटी छोटी सी चीजें लेकर के सिर्फ आपको उसको कितनी 5x20 की ग्रिड में एडजस्ट करनी थी. Okay, now we will move to the very first part of the paper, that is the 20 marks. First question इससे बोला गया you had to cycle home through the town on the day of festival. अब आपको, अब सपोज करो कि कोई भी एक फेस्टिवल है,
तो यू वर जस्ट साइकिलिंग थ्रू द एयर. ये मत बताना कि कहाँ से कहाँ गए, ये जाना था वहां जाना था. सिर्फ आपको वो साइट्स, क्या क्या चीजें वहां पर आपने देखी वो एक्सप्लेन करो. व्हाट साउंड्स वर देयर दैट यू नीड टू एक्सप्लेन. देन मूड ऑफ द पीपल अराउंड you, that the people were very much joyful, and what were your feelings at the end. Now roaming through the chaos or cycling through the chaos of the area or the locality. Okay, hometown से आप अपने you were cycle to home through the town or on the day of festival. So while moving through the chaos of yeah, hustle bustle of that area, I was completely exhausted, and even at the last I felt a nice flashback that was going on through my eyes. Then life is a series of choices that you make every day. Narrate an incident when you had to make a difficult choice. अब एक चीज इसमें ध्यान देना कि डिफिकल्ट चॉइस बोला गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप गए हो कहीं मॉल में और आपने एक ड्रेस को चूज किया, एक ड्रेस को छोड़ दिया. तो ये कहीं से भी डिफिकल्ट चॉइस नहीं होती है. एंड यू नीड टू टेल द पॉजिटिव इम्पैक्ट यू इट हैड ऑन यू. हमने बहुत सिंपली आपको एक चीज बताई थी कि आपको एक एज स्पेसिफिक ऐसे लिखना है. एज स्पेसिफिक या एज अप्रोप्रिएट आपको नरेशन देना है. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अभी बता रहे हो कि मैंने ये सब्जेक्ट चूज किए तो अगले 10 साल बाद हम ये बन गए या वो बन गए, वो चीज गलत होगी. तो यू हैव टू चूज एनी ऑफ द चॉइसेस कि आपने तब की थी और तब से लेकर के अब तक यू हैव ग्रोन लाइक दैट. जैसे इफ आई टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, सो इफ राइट फ्रॉम 9th आई हैव चूजन कॉमर्स एंड आई वाज नॉट दैट मच अ ग्रेट चाइल्ड इन साइंस सब्जेक्ट्स. So that had made a positive impact on me from my result in class 8th to my result in class 11th and 12th. It has increased a lot और it has improved a lot. तो ये एक positive impact हो सकता है. आप ऐसी ही कोई difficult सी choice उसमें लिख सकते हो. Okay, now comes the part of college degrees needed to succeed in life. अब इसका सिंपल सा, अगर आप फॉर में ले रहे हो तो फॉर में यू नीड टू गिव एग्जांपल्स ऑफ द पीपल जिन्होंने पॉजिटिवली कॉलेज डिग्री ली है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा सक्सीड हुए हैं लाइफ में. अगर आप इन चीजों की प्रैक्टिकलिटी को जाते हो, हमने एक और चीज बताई थी इसमें कि ऐसे में देर इज नथिंग दैट एनीवन इज गोना जज यू ऑन द मोरालिटी बेसिस. अगर आप कहते हो कि कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है. इफ यू आर सेइंग कि इट इज अगेंस्ट, तो आप ये भी कह सकते हो कि ऑब्वियसली नॉट इट दिस इज नॉट नेसेसरी कि एवरी कॉलेज डिग्री पर्सन हैज अ सक्सेसफुल लाइफ. और आपको उसमें ये भी शो करना है कि व्हाट एक्चुअली सक्सेस मीन्स. डज इट मीन हैप्पीनेस और डज इट मीन ओनली मनी. देन ह्यूमर. अब ह्यूमर में यू कैन मेक इट इन एनी वे. आप इसमें स्टोरी भी लिख सकते थे, ठीक है. तो इट एज इट मतलब इसको आप बहुत ज्यादा वाइड होता है ये एक्सपोजिटरी ऐसे. सो इसमें यू कैन मूव इट इन एनी वे इन एनी ऑफ द डायरेक्शंस, और यू हैव टू थिंक in a wide variety of areas. Then next is one cannot always get what one wants and sometimes it is for the best. अब इसमें you could write some short story, ठीक है. छोटी सी आप इसमें स्टोरी भी मेंशन कर सकते, नहीं स्टोरी इन द सेंस कि पार्ट ऑफ द स्टोरी. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसमें स्टोरी इसमें बता सकते थे, लेकिन इसमें यू कैन ओनली मेंशन अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. आप इसमें प्रोवर्ब्स यूज कर सकते थे कि समटाइम्स इट हैपेंस कि कुछ चीजें होती हैं जो आप लाइफ में चाहते हो लेकिन एक्चुअली आपको वो नहीं मिलती है और वो बहुत ज्यादा अच्छे के लिए होता है. तो आप अपनी लाइफ की कोई भी ऐसे 10 से लेकर 12, बचपन से लेकर के 12 तक के इंस्टेंसेस आप इसमें मेंशन कर सकते थे और बता सकते थे कि व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट, कि अच्छा हुआ मुझे ये चीज नहीं मिली, क्योंकि अगर मिल जाती तो शायद मैं इस डायरेक्शन में नहीं जा पाता. देन नेक्स्ट इज ओरिजिनल स्टोरी. यू हैव टू राइट, ऑलरेडी टोल्ड कि ओरिजिनल स्टोरी कैसी होती है, जिसमें starting lines should be the same as it is. My mother stopped suddenly, जब उन्होंने and stared in amazement, हैरानी से उन्होंने देखा किस पर. तो this you have to write. Now comes the part of दिस आर्टिकल राइटिंग. बहुत मतलब इजी से टॉपिक दिया गया था, बहुत डायरेक्ट टॉपिक ही आपको दिया गया था, इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट इसमें था नहीं. क्या कहा गया दैट यू आर द एडिटर ऑफ ए स्कूल मैगजीन एंड यू हैव टू टेल
about awareness among the students on the topic, the noise pollution a threat to all life forms. So it can start as like कि life, the city life is very much challenging क्योंकि हम लोग usually रूरल एरियाज को नॉइस पोल्यूशन से एक्सक्लूड करते हैं. एक्सक्लूड इन द सेंस कि वहां पर कंपेरेटिवली चीजें कम होती हैं, वहां पर इतने व्हीकल्स नहीं होते, वहां पर डीजेस इतना ज्यादा नहीं होता है. ठीक है. तो क्या बोला गया है कि यू कैन राइट इट एज कि द करेंटली द urban life is very much challenging. In many of those challenges, one major challenge is that of noise pollution that poses a threat to all life forms. Okay, the very first is causes of noise pollution. तो इसमें बहुत छानबीन करने के बाद, बिकॉज आई एम वेरी पुअर एट ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस, बचपन में पढ़ा था मैंने एक सब्जेक्ट, तो इसके आप कॉजेज में क्या लिख सकते हो, दैट देयर आर व्हीकल्स, देयर आर एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल मशीन्स आर देयर, लाउड स्पीकर्स एंड क्रैकर्स उसके नॉइज पोल्यूशन के कॉजेज में आ सकता है. फिर इफेक्ट ऑन ह्यूमंस में आप लिख सकते थे कि हियरिंग लॉस, स्लीप डिस्ट्रप्शन, हार्ट डिजीज या फिर स्ट्रेस. फिर है उसके मेजर्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, इन विच देयर वर, क्या मतलब इसके नॉइज पोल्यूशन के मेजर्स हो सकते हैं कि आप उसको किसी असाइडेड एरिया में, जो भी आपको पार्टीज एंड ऑल करना है वो असाइडेड एरियाज में करो, या फिर देयर शुड बी एनक्लोजर्स अराउंड द मशीन्स. जो भी मशीन बहुत ज्यादा शोर कर रही है तो उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा क्लोज्ड एरिया होना चाहिए. फिर बोला गया है रोल ऑफ अथॉरिटीज, जिसमें यू कैन मेंशन, अच्छा लिविंग क्रिएचर्स वाला भी था ना, इफेक्ट्स ऑन अदर लिविंग क्रिएचर्स, जिसमें था दैट बिहेवियर ऑन देयर फिटनेस, बर्ड्स जैसे हैं तो बर्ड्स में था कि बिहेवियर ऑन देयर फिटनेस, देन ब्रीडिंग एंड ग्रोथ में चेंजेस आते हैं. फिर और एनिमल्स में था कि दे हैव कॉग्निटिव और ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देयर इज पेन एंड देयर इज ऑल्सो फियर, मीन्स दे आर, द एनिमल्स आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ दीज नॉइज. फिर रोल ऑफ अथॉरिटीज, जिसमें आप ये बता सकते थे कि कुछ एक रूल्स हैं, वो कौन सा 2000 ईयर वाला था, नॉइज एक्ट या कुछ था, तो उसमें आप ये बता सकते थे कि देयर इज अ रूल कि डीजेस जो है इस शायद 10 या 11 बजे के बाद बंद हो जाते हैं. कुछ स्पेसिफिक डेसिबल्स होते हैं, अब उसके लिए भी इंसान को ज्ञान होना चाहिए इतना कि हाँ डेसिबल्स मतलब, आई पर्सनली डोंट नो, तो कुछ स्पेसिफिक डेसिबल्स होते हैं कि आप उससे उतना ही रात में आवाज जा सकती है. एंड फाइनल कंक्लूजन दैट therefore since it is causing a lot of threats, people need to be aware कि ये चीजें अब थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए due to these and these problems. Okay, फिर है as a member of a student council of your school you wish to set up a food club. और इसका उन्होंने पहला एक तो इंट्रोडक्टरी पार्ट दे ही दिया हुआ है कि टू प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड टू promote, to give knowledge to the students about energy level or the healthy food. We propose to set up a food club. ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स में आप लिख सकते हो टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्दी लिविंग एंड वेलनेस, और 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं सॉरी. तो यू कैन राइट टू इनकलकेट द importance of nutritional diet. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया और समथिंग दैट इज डेविएटिंग from what I have told, from what you have written, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your further exams. Best wishes. Thank you.